अगर आप देखिएगा 130 में रोमन 7 पे आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इग्नोर्ड। रोमन 6 है जी, रोमन 6, सॉरी सर। फिर आप देखिएगा दोबारा पैरा 11 पेज 132, वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर jurisdiction. This is the dissenting judge. We are conscious of our jurisdiction before hearing a matter fixed before us. से पढ़िए ना आप ये पैरा 11 सर। नहीं तो इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है पैरा कौन सा रोमन सर ये रोमन 6 है, इसका कॉन्टेक्स्ट है। असल में आप यहाँ से पढ़े ना। In these circumstances we have thoroughly considered the hurdles before us. ऊपर से पढ़े थोड़ा सा। I recall that Mr. Salman Raja replied that he will not press that the seats be given to PTI, but the court has the power to do so. In these circumstances, we have thoroughly considered the hurdles before us. सलमान राजा साहब का ये आर्गुमेंट है कि वो PTI को बेशक आप ना दें, मगर आपकी मर्जी है तो देख लेंगे। मतलब वो 187 की jurisdiction की उस पे hurdles क्या है? One of the hurdles is Article 175 of the Constitution has been ignored. Majority decision. फिर आप देखिएगा और क्लियर हो जाता है पेज 132 में पैरा 11 पे, पैरा 11 132। ये किसका ये किसका? This is the dissenting judgment of His Lordship Justice Amin, Justice Aminuddin and Justice Naeem साहब। ठीक है जी। कौन सा पढ़ा? 11 sir 132। We are conscious of our jurisdiction before hearing a matter fixed before us, whether as a judge of the High Court or that of this court. In the instant matter, we are conscious that we are sitting in a jurisdiction vested in this court under Article 185 of the Constitution and can exercise jurisdiction under Article 175 of the Constitution, but cannot exercise any other jurisdiction as this is not conferred upon this court. Therefore, it cannot be exercised. अगर आप देखिए ना, ये तो अंडर रिव्यू नहीं है। 175(2) में जुरिसडिक्शन असाइन की जाती है टू सुप्रीम कोर्ट। जी जी। कौन से जुरिसडिक्शन? क्या 187 जुरिसडिक्शन नहीं? बिल्कुल जुरिसडिक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल उसी जुरिसडिक्शन में मैटर था बिफोर दिस कोर्ट। जी 187 उसी जुरिसडिक्शन में। सर 187 में तो कोई मैटर हो ही नहीं सकता। 185 में 187 में तो कोई मैटर हो ही नहीं सकता। वो तो एक रेसिड्यूरी आर्टिकल है, यू आर राइट, उसमें कोई राइट नहीं दिया है, राइट ऑफ अपील और राइट ऑफ रिव्यू और रिवीजन उसमें नहीं है। 184, 185 और रेफरेंस का जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट, और फोर्थ है वो रिव्यू का पावर। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। ये 187 है आपको स्कोप देता है कि कंप्लीट जुरिसडिक्शन में आप कर रहे हैं, उसमें स्कोप देता है आपको कंप्लीट जस्टिस। तो कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली इररिलेवेंट बिकॉज दिस वाज द एग्जैक्ट क्रिटिक अगेंस्ट द जजमेंट एंड द अमेंडमेंट इज देन मेड। अब मैं आता हूं कि मेजॉरिटी जजमेंट में का क्या है। टाइप पेज 5 वापस दूसरे पेपर में क्यों जाएंगे? जी हाँ, दूसरे पेपर में क्यों जाएंगे? जी सर, वो जिसमें मैंने समरी दी हुई है सर। जी, if I may read sir, how now I'm coming to the issue of 187 sir. कहाँ से ये? सर पेज टाइप पेज 5 पावर्स ऑफ कमीशन। हाँ जी सर, ये जो आपने अपनी जजमेंट में ये लिखा है स्कोप का सर। द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कमीशन अंडर आर्टिकल 218(3) and of the Supreme Court under Article 187(1) of the Constitution. In view of the principles stated above, PTI, its candidates and the electorate should not be made to suffer or to be prejudiced by the unlawful acts or omissions of the public functionaries, namely the returning officers and the Commission. Given that they have been deprived of their constitutional right to proportionate representation in the reserved seats due to those unlawful acts and omissions जो मैंने ऊपर पढ़े थे कल सर, they are entitled by virtue of an obligation of justice to be restored to the right and place in so far as possible in the same position they have been if such unlawful acts and omissions have. This is a point made by Justice Pawar yesterday, that this judgment restores
However, there is no specific provision in the Constitution or the Election Act to address the situation and rectify the law. Similar is the scope of the constitutional general power of the Supreme Court under Article 187, 173 sir, ye footnote hai, of the Constitution. It is to be invoked and exercised by the court to do complete justice in any case when there is no specific provision of law that covers or addresses the matters or issues involved. While exercising such general power, the Commission or the court must, however, make an endeavor to adhere to the spirit and substance of the provisions that, although not covering the matter or issue, are closely related to it so that the legislative intent may be given effect to the maximum extent possible. The ultimate objective sought to be achieved by laws, the courts and justice system, as observed by Kekaus Jain as declared by the larger bench, is to dispense justice by ensuring that rights are delivered to those to whom they belong. Let justice be done though the heavens fall. Thus, the power under Article 187(1) of the Constitution is focused on achieving and prioritizing fairness to ensure complete justice in any case. As for the impugned judgment of the Peshawar High Court, we know, as held by the court in Dusani Travels, that the ambit and scope of the power of the High Courts under Article 199 of the Constitution is not as wide as of the Supreme Court under Article 187 of the Constitution to issue such directions, orders or decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it. Nor do the High Courts possess such general constitutional powers which the Commission has under Article 218(3) to ensure that elections are conducted honestly, justly and fairly. Therefore, without PTI's petition, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशावर हाई कोर्ट क्यों रिलीफ ग्रांट नहीं कर सकता. दैट इज व्हाई योर लॉर्डशिप हैज यूज्ड द एनालॉजी कि आई सी दिस एज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द आरओ. वो एक रीजनिंग है, ये एक रीजनिंग है. ये फिर साथ होने चाहिए थे. हाँ, फिर तो साथ. अच्छा तो यही है कि सब साथ हो. Therefore, without PTI's petition, the High Courts could not have passed an order like the one we have or the one that the Commission could have passed for doing complete justice and ensuring that the election is conducted honestly, justly and fairly. However, what the Peshawar High Court could have done but failed to do in the present case is to remand the matter to the Commission with a direction to do what the Commission was required to do under Article 218(3) of the Constitution, read with Section 4 and 8 of the Election Act. तो पेशावर हाई कोर्ट के पास ये ऑप्शन ही नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट के पास था कि ऐसी पार्टी जो उसके सामने नहीं है उसको रिलीफ ग्रांट कर सके. बट द सुप्रीम कोर्ट कैन डू दैट अंडर 187. और ये जो दुसानी ट्रेडर्स का इसमें पॉइंट ये है जो आर्गुमेंट भी हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा प्लीज क्लेरिफाई दिस. आर्टिकल 187 स्पीक्स दैट मैटर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट wherein the complete justice can be done. Here the only problem is that whether complete justice can be done, Article 187, and the relief can be granted to a party which is not before the Supreme Court. This is the issue. वो complete justice का जो point है वो अपनी जगह मौजूद है आज भी, उस पे कोई कदगन नहीं है. complete justice बिल्कुल होता है, but the providing complete justice between the 2 or 3 parties before the court is a totally different scenario than grant of relief to a party which is not before the Supreme Court, and the application for intervener has been dismissed on the ground that they are not proper or necessary party. Not dismissed. Not disposed of. जी disposed. आप इसमें एक बात और भी देखिए. Exactly यही है. So the subject matter, एक जुमला. Exactly, this is the point. बिल्कुल. In review, the review petitioners have raised this point that the party which is not before the court has been granted relief under Article 187, and in my view, this is the moot question involved here. Sir, मैं इसको, to be fair to the petitioners, they have raised 2 interconnected questions. One is that PTI was not before the court, and number 2, it was not even before the High Court. There was no prayer by the PTI. So now, and one more thing is that, please add that there are so many plethora of the judgments of the superior courts. Do you have any such judgment that the party was not in the Supreme Court? And the third party has been granted relief which was never before the Supreme Court, nor come, nor claim, nor Your Lordship's judgment.
आपकी जजमेंट है। कौन सी वाली मैं आपको बताइए। पहले मैं 187 पे ले आप चलूं। मुझे बता दें तो मैं देख लेता हूँ 187 कौन सा आपको याद आ जाएगी। अभी आ जाएगी, आप बताइए। सिद्दीकी साहब 187 में एक नहीं, दो जजमेंट्स चलिए बताइए, हाई कोर्ट की है सुप्रीम कोर्ट की है अच्छा सर। बताइए, चलिए। आप इतनी जजमेंट लिखते भूल जाते हैं। मैं बस ये है। जी सर। Facilitate the question. जी जी सर। देखिए 187 में ये दो बात तो देखें लाजमी है। एक तो पार्टी का जिक्र नहीं है जी जी बिल्कुल। और दो अल्फाज यूज हुए हैं, ग्रेट पॉइंट सर। मैटर केस और मैटर पेंडिंग। जी व्हाट बिल्कुल। इज द डिफरेंस बिटवीन केस एंड मैटर? बिल्कुल सही। अभी एक क्वेश्चन और सही तो मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने सही आपके वो मैं टीचर जो मुश्किल सवाल पूछती था तो उसकी तरफ मैं आपका सवाल अवॉइड करता हूं। सही साहब, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने सवाल किया। आप क्या नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि ये पार्टी का जिक्र नहीं है, मैटर का जिक्र। सो मैटर ऑफ रिजर्व सीट्स वाज पेंडिंग। मैटर एंड केस दो जी, जी, अल्फाज बिल्कुल। केस एंड मैटर, ऑर्डर, जजमेंट, ये सारी बातें अच्छा पढ़ लेते हैं। अभी आप जी सर, आप जो 3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं फ्रॉम द मेजॉरिटी जजमेंट, जी, जी, उसमें उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट पास हैविंग नो जुरिसडिक्शन जी, जी। व्हिच वी हैव। अंडर 187 187 हाई कोर्ट को चाहिए था कि रिमांड कर देता। जी। वाज देयर एनी प्रेयर ऑफ रिमांड बिफोर द हाई कोर्ट? सर देयर डजंट हैव टू बी। आप हर रोज वाज देयर एनी प्रेयर? नहीं नहीं नहीं, वो तो सेटिंग भी असाइड का था। आपका केस तो डिस्मिस कर दिया। अब 185 में 3 में जो जुरिसडिक्शन है 187 में उसी में ही आगे जाएंगे। 185 185 3 इट विल बी रेड। क्या 184 की जुरिसडिक्शन में भी जा सकते हैं? वाइल जो एक्साइज दुसानी 187 ट्राइबल्स वाला केस है वो 185(3) का केस था, जिसमें 187 की जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज की गई, ये कह के कि हाई कोर्ट ये नहीं कर सकता था, हम कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट की जजमेंट सेट असाइड की कि जो डायरेक्शंस इशू किए थे फॉर कंप्लीट जस्टिस, और खुद वही डायरेक्शंस इशू कर दिए कि उन्होंने कहा हम कर सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं कर सकता था। 190 क्वेश्चन ये है जी, कि जी। 187 की जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए 184 में जा सकते हैं? 184(3) में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, 185(3) में भी एक्सरसाइज। एक चीज और सुन लीजिए जो मेरा इंटरप्रिटेशन मैं सर जो जजमेंट साइड करूंगा वो सारे 185(3) एक और चीज इसमें 187 एक्सरसाइज। जी माय इंटरप्रिटेशन में यू एग्री, मोस्टली यू एग्री एंड सर 99% आई एग्री, 1% आई डिसएग्री। माय ब्रदर हैज रेज्ड द क्वेश्चन दैट द केस एंड मैटर। अब ये देखिए, इसको दोबारा देखिए। जी जी सर। फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस। जी जी इन एनी केस वो होता है जो केस ऑलरेडी 185 से आ रहा हो या आपके पास पेंडिंग। जी, जी। और मैटर वो है जो कि उस वक्त सो मोटो जुरिसडिक्शन था, वो मैटर है सो मोटो मैटर, इसलिए इसको डिस्टिंग्विश किया इन एनी केस और मैटर। और मैटर मीन्स सो मोटो एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन विच इज नॉट एप्लीकेबल नाउ। इन एनी केस, यो केस है जो 185 कोई भी केस हमारे पास चल रहा है, और मैटर जो सो मोटो एक्सरसाइज ऑफ पावर होता है, सर, इसलिए डिस्टिंग्विश किया इन एनी केस और मैटर पेंडिंग। फर्ज करें मैं फॉर द टाइम बीइंग विदाउट टेकिंग अ पोजीशन ऑन दिस आपकी बात मान लेते हैं। फॉर द टाइमिंग मान रहे हैं? फॉर द टाइम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। देखिए ये तो कोई डाउट नहीं है ना कि एक एक लफ्ज का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट crucial और सबसे आप दोनों में ये कंसेंसस तो है कि दिस डजंट रिलेट टू पार्टीज, द केस और मैटर मस्ट बी पेंडिंग। अब ये तो कोई डाउट नहीं है, द केस ऑफ रिजर्व सीट्स अलॉटमेंट was pending before the Supreme Court in आप इसको इस 185 तरह कर ले, द मैटर ऑफ रिजर्व सीट वाज पेंडिंग। pending. Case was केस ऑफ SIC इन व्हिच मैटर ऑफ रिजर्व सीट वाज जी। पेंडिंग। अब देखिए So moto. हाँ सर, देखिए नहीं असल में हाई कोर्ट की जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट की जजमेंट में एक पैराग्राफ है जिसमें हाई कोर्ट ने एक्चुअली ये कहा है कि अगर हमारे सामने PTI होती तो फिर हम ये देखते कि क्या ये रिजर्व सीट्स उनको आप मिलनी ये बता चाहिए। दें, आप हाई कोर्ट की पावर्स को क्यों कर्टेल कर? आप करें हाई कोर्ट नहीं कर सकती थी। आप 199 पढ़े, उसके कितने सर पावर? कंप्लीट जस्टिस आप पढ़ ले जरा उन्होंने कहा रिमांड तो हाई कोर्ट कर सकता था, जी, जी, रिमांड तो ये कोर्ट भी कर जी, सकता जी, था। बिल्कुल। इवन ये 185 में हम भी रिमांड कर सकते बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल किसी को कर सकते matter थे। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमांड ही किया। तो बस तो रिमांड तो यहाँ भी हो सकता था। बिल्कुल 199 पढ़ ले, हाई कोर्ट के वसी इख्तियारात हैं, और अगर हाई कोर्ट अपने इख्तियार इस्तेमाल ना करे, कैन वी डायरेक्ट द हाई कोर्ट टू डू सो? नो नो यस, व्हाई नॉट? सर हाई कोर्ट अगर इख्तियार 187 के तो इख्तियार नहीं, वो तो आपके पास है। 199 पढ़ ले, 199 में के नहीं, इख्तियार 199 में भी 187 के इख्तियार नहीं। 199 पढ़ तो ले। जी जी सर, कौन सी प्रोविजन पढ़ूं सर आपका? फर्स्ट हाँ, subject to the constitution, a high court may, if it is satisfied that no adequate
remedies provided by law on the application of any aggrieved party make an order. फिर वो सारी writs हैं सर, 5 जो writs होती हैं, जी 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 and 1A मैं नहीं पढ़ूंगा, वो add हुआ था. इसमें देखें ना, हाँ. to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required to do. हमने तो ये कहा ना कि the election commission has failed to do its function. तो ये इन्होंने हाई कोर्ट के पास पावर था to inquire the commission. मेरे ख्याल में वो पावर्स को एक्सपैंड कर दिया 187 नहीं में. देखें, 199 के पावर्स भी बड़े वसी हैं, बट यू आर राइट के हाई कोर्ट हैज नो पावर जस्ट लाइक 187. आई एग्री, असल में- आई एग्री विद यू. सर, मैं बताऊं, ये- बट आर्टिकल 199 भी जो है, अगर आप 184 भी पढ़ते हैं ना, तो विदाउट प्रेजुडिस टू आर्टिकल 199 का जो जुरिसडिक्शन है ना 184 में, जी, जी. कि वो उसको मुतासर नहीं करता है कि अगर आपको कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस या लॉ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाना है, तो इवन द आर्टिकल 184 speaks of that without prejudice to the article 199 public importance. ये हम यहाँ देख सकते सर हैं. डोमिनेंट इंटरेस्ट जो होता है ना 187 में, वो you are right, you are वो right. जस्टिस, ये क्लैरिफाई किया आपने एक जजमेंट में, पेज 185 देखिएगा, बुक 2. वो पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है. यू आर राइट, आर्टिकल 187 कैनॉट बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट, बट इन आर्टिकल 199 दे हैव अदरवाइज पावर्स टू रिमांड, बिल्कुल, मॉडिफाई, मैंडेमस, सेशुरी, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो. लेकिन एक जो लार्जर पर्पस है ना, पावर है ना सर, ऑफ टू डू कंप्लीट जस्टिस, ये वो नहीं है. यू आर राइट. एंड वो क्या है, वो आपने एक्सप्लेन किया. हाई कोर्ट पूछ तो सकती है. जी जी पूछ सकते हैं. Any authority who fail to perform its function किसके judgment में? or perform its function in excess of its authority. बिल्कुल. वो जो अल्फाज आप देखिए इस जजमेंट में, जो मेजॉरिटी जजमेंट में तभी यही बात कही है जी, जी. कि द इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी. तो वो यही बात 199 लेकिन वो जो आपने किया ना कि आपने रिमांड करने के बजाय खुद एक एनालॉजी ड्रॉ की कि दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द आरओ थिंग, आई थिंक दैट इज एन एक्सरसाइज ऑफ 187. जरा ये एक जजमेंट प्लीज देखिएगा पेज 185 पे. इसमें जो